गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ अभिक रॉय फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल। योर मैथमेटिक्स टीचर इज कमिंग इन फ्रंट of you for presenting different types of solutions from the different topics, different chapters of the mathematics subject as well. Okay, and just we are going to discuss the differentiability chapter in this video. And so far I know that in the last video I had discussed various concepts and various things regarding the differentiability, actually the source of differentiation, and from where this differentiation concept came, and it was introduced also, and that was discussed. And I think just see the lecture number 1 from the differentiability chapter, then you will get the idea how to solve the differentiability questions as well. And the first principle questions, actually we had discussed this first principle chapter from the differentiability concept. Okay, so हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h. Okay, this concept is called the first principle of differentiation. And as I know that in class 11 you had solved various questions regarding this first principle. Okay, but just we will recall all the concepts from the 11th classes, and after that we will proceed to the 12th class concepts and 12th class solutions also. Concepts is nothing here. This differentiability concept, just you know very well how to solve the differentiability part, LHD and RHD. Okay, now just give the heading left hand derivative and right hand derivative. Left hand derivative and right hand derivative, just like your continuity chapter. Continuity में हम लोगों ने क्या लिखा था? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी ऐसा ही करना है, लेफ्ट हैंड में जाना है एक बार, राइट हैंड में जाना है एक बार, ठीक है। लेफ्ट हैंड में जब जाओगे तब माइनस होगा, और राइट हैंड में जब जाओगे वो प्लस होगा, है कि नहीं? तो यहां पर लिखो we know that first principle of differentiation is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Okay, this is the first principle. Now if you want to check the differentiability at a particular point, now just write a note here. If a function is differentiable, just like your continuity part, differentiable at x equals to a, x equals to a पॉइंट में ये फंक्शन जो है एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कब? then just write limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h, because we are going to solve the differentiability condition at the point x equals to a. That means we have to replace this x by a generally. So equals to limit h tends to 0 f of a minus f of a minus h by h. Okay, so here you can see a plus h case is there. That means what? as a greater, a minus h case is there. That means as a smaller. So ये जो कंडीशन है उसको बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव, जस्ट लाइक इन कंटिन्यूटी चैप्टर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग जो है कंटिन्यूटी चैप्टर में वो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था, ये स्ट्रक्चर डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा अलग है, बट यहाँ पर बेसिक जो कंडीशन है, बेसिक थिंग जो है वो सेम ही होता है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट और नॉट। अगर ब्रेक आ गया रास्ते में, मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन जो है कौन सा फंक्शन का किया जाता है, जो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस जो है चलता रहता है, कंटिन्यूअस उसका वैल्यू जो है चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग।
अब बीच में अगर कोई भी ब्रेक पॉइंट आ गया तो दैट मीन्स वो उस चीज का वैल्यू, उस फंक्शन का वैल्यू जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस अगर नहीं होगा तो मैं डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक बार लेफ्ट साइड में गया, उधर देखा कि ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं, राइट हैंड में गया, राइट हैंड में देखा कि ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं, अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको सेम काम ही करना है, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये है मेन स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर जो उसमें डिस्कस किया है कैसे ये स्ट्रक्चर आया है। अब x इक्वल्स टू ए पॉइंट में आपको अगर यहाँ पर ये देखना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तब आपको ऐसे ही लेफ्ट साइड में जाना है एक बार, राइट साइड में जाना है एक बार। लेफ्ट साइड में जब जाओगे तब a माइनस एच केस आएगा, राइट साइड में जब आओगे तब a प्लस एच केस आएगा। तो यहां पर देखो a प्लस एच केस, ठीक है, ये बाई एच राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये देखो a माइनस एच केस। यहाँ पर बोलोगे एक क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, सर यहाँ पर a प्लस एच सामने है, उधर a माइनस एच बाद में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो f ऑफ a प्लस एच, a ऐसे a प्लस एच ग्रेटर होता है कि नहीं? तो माइनस जब करते हैं ग्रेटर वाला जो सामने रहता है ना, तो इसलिए f ऑफ a प्लस एच सामने है यहाँ पर। वहां पर देखो a माइनस एच वो ऐसे छोटा है, दैट मीन्स f ऑफ a यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू होगा। तो दैट मीन्स इसलिए माइनस जब कर रहे हैं तो ग्रेटर वाला जो है वो सामने लिख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस एच। अब जस्ट तुम्हें देखना है कि a प्लस एच राइट हैंड डेरिवेटिव, a माइनस एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर x के जगह जो है a सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों केस अगर इक्वल हो गया दैट मीन्स क्या है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, हो गया है। अब आओ ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और एच का यहाँ पर तो डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है। एच का डेफिनेशन क्या है? दो वैल्यूज के बीच डिफरेंसेस। तो जितना वो दो पॉइंट सामने आएगा उतना ही उन लोगों का जो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंसेस जो है वो भी जीरो की तरफ ही टेंड्स करेगा, है कि नहीं? ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तुम यहाँ पर खड़े हो, डिस्टेंस सपोज यहाँ पर 1 किलोमीटर है। अब जितना हम लोग जो है सामने आएंगे ना, तब ये डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर से कम होते 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 किसके तरफ टेंड्स करेगा? जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। तो दैट मीन्स ये है एच, दो पॉइंट्स के बीच डिफरेंसेस, ठीक है। तो जब जितना सामने आओगे उतना ही एच का वैल्यू जो है जीरो की तरफ जाएगा, निगेटिव में नहीं जाएगा, जीरो पे आके स्टॉप। इसलिए ऑलवेज लिमिट में एच टेंड्स टू जीरो दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिमिट बोलो या कुछ भी बोलो, सब कुछ तो पॉइंट्स का ही यहाँ पर खेल है ना। सो पॉइंट्स के बीच डिफरेंसेस, दैट मींस यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के बीच डिफरेंसेस होता है। तो कोऑर्डिनेट्स के बीच डिफरेंसेस मतलब यहाँ पर एच का वैल्यू भी कम होते 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 जीरो में आकर खत्म होगा, है कि नहीं? तो ये है राइट हैंड डेरिवेटिव और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप लोगों को अगर निकालना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आप लोगों को ऐसे ही निकालना है यहाँ पर, ठीक है, हो गया। अब आओ नेक्स्ट, एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट sin x is differentiable. sin x is differentiable. तो दैट मीन्स sin x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। अगर सेम हो गया तो डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं? तो यहां पर देखो, हियर fx इक्वल्स टू क्या दिया गया? sin x दिया गया, है कि नहीं? तो फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग क्या जानते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहां पर सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं यहां पर निकालूं, लेफ्ट हैंड क्या है? डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h बाई h। इसका आंसर अगर मैं निकालूं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, fx मतलब क्या है? sin x माइनस sin x माइनस h
बाई एच, है कि नहीं? ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो यहां पर साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला यूज होता है, साइन ए माइनस साइन बी, दैट मीन्स ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है, साइन ए माइनस साइन बी, दैट इज 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, ठीक है, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर 2 इंटू कोस ए प्लस बी, देयर इज एक्स प्लस एक्स माइनस एच बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी, एक्स माइनस एच प्लस एच बाई 2 होल बाई एच, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है और इधर जो है कुछ बाकी नहीं रहता है, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे और कुछ कैंसिल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो 2 cos twice x minus h by 2 into sin h by 2 whole by h, है कि नहीं? ठीक है। अब याद रखना कि लिमिट क्वेश्चंस में अगर कोसाइन का कोई भी एक्सप्रेशन आए तो अगर मैं उसमें एच का वैल्यू 0 पुट कर दूं, देखो तो इसमें एच का वैल्यू 0 पुट करने से कोई फर्क पड़ता है? यहाँ पर कोई अनडिफाइंडनेस केस आता है या फिर 0 आ जाता है? देखो यहाँ पर एच का वैल्यू 0 पुट करने से क्या होता है, ट्वाइस एक्स माइनस 0 बाई 2, दैट इज ट्वाइस एक्स बाई 2, दैट मीन्स कॉस एक्स। और बाकी जो टर्म्स हैं उस सब में मैं एच का वैल्यू 0 जो है पुट नहीं कर सकता हूं, आंसर जो है पूरा 0 आ जाएगा, नीचे भी तो एक एच है ना। अब ये जो 2 है उसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 होल बाई एच बाई 2, ये जो एक्सप्रेशन आया मैंने आपको बोला था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, लिमिट का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो दैट मीन्स ये देखो यहाँ पर x के जगह h बाई 2 है, क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रक्चर तो वही होता है ना यहाँ पर। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, cos x into 1, आंसर इज cos x, ठीक है। सेम सिमिलरली आप लोगों को अभी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h, so limit h tends to 0 sin x plus h minus sin x by h, तो फॉर्मूला देखो यहाँ पर सेम ही होगा, sin a माइनस sin b, तो sin a माइनस sin b 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, है कि नहीं? ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पर देखो ये एक्स एक्स बाई एच तो यहां पर है ही है, तो क्या रह गया, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, सेम देखो 2 इंटू कॉस ट्वाइस एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 होल बाई एच, देखो सेम एक्सप्रेशन भी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कोसाइन एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, कोसाइन एक्सप्रेशन में लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये जो कोसाइन एक्सप्रेशन है इसमें एच का वैल्यू 0 पुट करने से देखो cos x आ जाता है, cos x, उसको तो अब लिमिट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि h ही नहीं है यहाँ पर। तो 2 साइन h बाई 2 बाई h, तो सेम चीज ही है, देखो cos x लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, दैट इज ये 1, दैट इज cos x। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर जो है, सॉरी लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का आंसर जो है cos x आ रहा है। सो दैट मीन्स sin x का डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल हो गया है, और डिफरेंशिएशन होके जो है आंसर क्या निकलता है, cos x निकलता है कि नहीं? ठीक है।
तो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is what? cos x. ठीक है, हो गया। तो ऐसे ही जो है आप लोगों को चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएबल है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा वही होगा डिफरेंशिएशन का आंसर। अगर इक्वल नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर अगर इक्वल नहीं हुआ, दैट मींस नॉट डिफरेंशिएबल, है कि नहीं। तो ऐसे ही एक नोट देके लिखो, नोट देके लिखो, इफ fx be any real valued function, then the differentiation can be denoted by ddx of fx, ddx of fx। ठीक है, उसको ऐसे d of fx by d of x ऐसे लिखा होता है। अब उसको स्टाइल करके जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि fx का वैल्यू यहां पर चेंज हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x का वैल्यू, है कि नहीं। तो x का वैल्यू जो हम लोग क्या लिखते थे, उसको इनपुट, पता है ना, फॉर फंक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये होता है आउटपुट। अब ये तो जनरल चीज ही है, नॉर्मल चीज है, इनपुट जितना चेंज करेंगे आउटपुट भी तो चेंज होगा ना, है कि नहीं। तो दैट मीन्स चेंज अगर हो तो दैट मीन्स चेंज का रेट भी होगा, कि इस स्पीड में जो है चेंज हो रहा है। तो जब ये रेट निकालने जा रहे हो तुम, तब तुम्हें ऐसे निकालना है d of fx by d of x। अब उसको स्टाइल करके जो है ऐसे लिखा जाता है ddx of fx, और ऐसे भी लिख सकते हो f dash x। तीन प्रोसेस है तुम्हारा, जो भी लिखो लिख सकते हो यहाँ पर, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो बोला है ना कि डिफरेंशिएशन, ये वर्ड डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ही ये होता है ये ddx, डिफरेंशिएशन मतलब ddx, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, हो गया। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ddx ऑफ साइन x इक्वल्स टू व्हाट, cos x, ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्ड में से लैंग्वेज में ना लिख के, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ddx ऑफ साइन x इक्वल्स टू cos x, ठीक है, हो गया। अब जो है ये तो 11th स्टैंडर्ड का गया। अब 12th स्टैंडर्ड का जो है हम लोग ये करते हैं, फाइंड ddx ऑफ साइन इनवर्स x equals to what, using first principle, using first, ऐसे क्वेश्चन में दिया जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकालना है। तो ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो है साइड में लिख कर रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू 1 होता है ना, ऐसे ही साइन इनवर्स x बाई एक्स भी 1 होता है, साइन इनवर्स x बाई एक्स भी 1 होता है। अगर नॉर्मल फंक्शन ऑनटू हो तो इनवर्स फंक्शन भी ऑनटू होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन x अगर ऑनटू फंक्शन हो तो साइन इनवर्स x भी ऑनटू फंक्शन होगा, 1 भी होगा, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू आंसर अगर 1 हो, इनवर्स फंक्शन में जाओ, ऐसी कंडीशन तो यहाँ पर सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पर पोजीशन चेंज होगा, डोमेन रेंज चेंज हो जाएगा, बट अल्टीमेट आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, साइन इनवर्स x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये साइन x फंक्शन जो है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, इन द इंटरवल 0 टू माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 में, माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 में साइन x फंक्शन जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 में, याद रखना, ठीक है। अब आओ ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इस इंटरवल में जो है साइन x फंक्शन जो है 1 और ऑन टू होता है, तो साइन इनवर्स x फंक्शन भी 1 और ऑन टू होगा। तो दैट मीन्स नॉर्मल फंक्शन साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू जब 1 होता है, साइन इनवर्स x बाई एक्स भी 1 होता है। अब तुम्हें निकालना है ये, सो हियर
एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। वेरी गुड। अब जो है देखो साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर एल एच डी शुरू करते हैं, एल एच डी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus f of x minus f of x minus h by h. So that means limit h tends to 0 f of x, that is sine inverse x minus sine inverse x minus h by h. So limit h tends to 0 sine inverse x minus sine inverse x माइनस एच, दैट इज व्हाट, एक फॉर्मूला। देखो इनवर्स का तो अभी तक हम लोग को कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं मिला है, फॉर्मूला यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, बट साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। ये फॉर्मूला जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर तो हम लोग का नहीं हुआ है। अब देखो नॉर्मल चैप्टर है, देखो यहां पर हम लोग कैसे करते हैं उसको थोड़ा देख लो। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक साइड में जो है ये लिख के रखो। हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जानते नहीं ये फॉर्मूला है कि नहीं, जानते हैं। अच्छा अब जो है लेट, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, लेट साइन ए इक्वल्स टू एक्स एंड साइन बी इक्वल्स टू वाई। ये दो हम लोगों ने एज्यूम किया है, ठीक है। नाउ यहां पर साइन ए अगर एक्स है तो कॉस ए क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। अगर साइन बी वाई होता है तो कॉस बी क्या होता है, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, अरे ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं सॉरी, आइडेंटिटी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर साइन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर होता है तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इधर स्क्वायर हटा देंगे, उधर तो रूट देंगे, है कि नहीं। तो दैट मींस साइन ए का वैल्यू अगर एक्स हो, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना ये सब, ठीक है। तो अब आओ नाउ ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, अब यहां से जो है एक न्यू लाइन बनता है। देखो साइन ए माइनस बी, ए मतलब क्या है, देखो यहां पर साइन ए मतलब एक्स है, तो ए मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ये देखो साइन ए मतलब यहां पर एक्स है, तो ए क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा ना, है कि नहीं। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स, फिर बी की जगह देखो, बी की जगह क्या होगा, देखो साइन बी इक्वल्स टू वाई है, तो बी मतलब क्या आएगा, साइन इनवर्स वाई, है कि नहीं, इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, तो साइन ए का वैल्यू एक्स, कॉस बी मतलब 1 माइनस साइन ए कॉस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। देखो तो है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहां पर देखो ये साइन जो है उसको अगर मैं साइड चेंज कर दूं तो ये आता है कि नहीं। देखो तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये राइट साइड में आएगा तो ये साइन जो है साइन इनवर्स हो जाएगा, एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। देखो ये एक न्यू फॉर्मूला जो है वो बन गया है। मैंने बोला था कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है अभी तक, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। सो दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है लिखो है, और ये होता है फॉर्मूला। एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया गया है, ठीक है।
तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, वाई के जगह यहाँ पर एक्स माइनस एच है। तो तुम अपना फॉर्मूला यूज करो, साइन इनवर्स, ये देखो x इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज वन माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर बीच में ये माइनस होगा, नॉट प्लस, माइनस, ये माइनस होगा ना, देखो फॉर्मूला यहाँ पर तो बीच में माइनस है, ये माइनस तो माइनस होगा ना, तो दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस एच रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। देखो ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब आओ ठीक है, अब आओ यहां पर साइन इनवर्स लिमिट h टेंड्स टू 0, लाइन क्या है यहाँ पर देखो तो, अच्छा यहाँ पर ये जो है जगह नहीं होगा, थोड़ा लंबा जगह यहाँ पर चाहिए, ठीक है, ये लाइन थोड़ा याद रखो, ये सब जो है मिटा देते हैं, थोड़ा लंबा लाइन चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब आओ, क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होल बाई क्या है, एच है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था कुछ देर पहले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स साइन इनवर्स के साथ जो एक्सप्रेशन यहाँ पर रहेगा वही एक्सप्रेशन नीचे रहना पड़ेगा, तभी जाके 1 आंसर तुम लिख सकते हो, है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x, ये पूरा जो है यहाँ पर x है, ये पूरा x है, साइन इनवर्स x क्योंकि पूरा एक ब्रैकेट में है ना, तो साइन इनवर्स x बाई x तो ये नीचे होना चाहिए, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है नीचे तो होना चाहिए, नीचे तो नहीं है, हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे लाएंगे, ठीक है। ऐसे देखो x रूट ओवर वन माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे लाया, अब ऊपर भी लाएंगे, दैट मीन्स जस्ट लाइक दैट वन माइनस दिस, हाँ, माइनस एक्स माइनस एच रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। देखो ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, आंसर इज 1, यहाँ पर एक्स थोड़ा लंबा है तो क्या फर्क पड़ता है, पैटर्न तो आ गया ना यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन जो 1 है, अब बाकी जो रह गया है वो लिख लो, बाकी क्या क्या रह गया, देखो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, है कि नहीं। यहाँ पर साइड में लिख लो, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, तो जो फॉर्मूला तुम लोग यूज करोगे वो साइड में लिख दोगे। अब जो है यहाँ पर क्या लिमिट हम लोग बिठा सकते हैं, क्योंकि नीचे देखो यहाँ पर नीचे देखो यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर आ गया h, तो जब तक ये डिनोमिनेटर में h दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, तब तक तुम यहाँ पर लिमिट जो है बिठा नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर h का वैल्यू 0 बिठा दिया तो डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता। अब दैट मीन्स हम लोग का नेक्स्ट जो काम होता है वो नीचे जो h जो है यहाँ पर in the denominator part, this h should be excluded, should be omitted from this denominator part. Anyhow, you have to cancel this denominator h. Okay, so how can you cancel this denominator h here? Only one step, only one process is there, and that is the rationalization method. Rationalization method, that means this numerator part should be rationalized now.
So how can I rationalize the numerator and the denominator part as well? Just we have to multiply the conjugate term with the numerator and the denominator part as well. So here at first you have to figure out the root over term, whatever you have in this last expression. So in the last expression, so far I can see that in the numerator part, this expression, this root over expression is there, and in the middle minus sign is there. So the conjugate part will be the same term, but the plus sign will be in the middle. प्लस साइन होगा मिडिल में, ठीक है. सो दैट मीन्स यही होगा conjugate. दैट मीन्स ये h टेंड्स टू 0, x1 माइनस x माइनस h होल स्क्वायर माइनस x माइनस h रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर बाई h. अब conjugate जो है ये देखो, conjugate होगा x रूट 1 माइनस x माइनस h होल स्क्वायर प्लस x माइनस h रूट 1 माइनस x स्क्वायर. नीचे भी सेम एक्सप्रेशन ही आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करना है. जो मर्जी वो हम लोग नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसको न्यूट्रल भी करना पड़ता है. यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लोगों ने एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, वो सेम टर्म से डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए और अल्टीमेट जो टर्म्स हैं वो सेम रहे. तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में शायद एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी. There is a square minus b square. What is your a here? I think this is your a. X minus h whole square. It is your a. A square minus b square. That is just like that. 1 minus x square whole by h into denominator part जैसा है वैसे ही रखो. हम लोग उसको टच भी अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसको टच करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही रख के देखते हैं. अगर लास्ट तक हम लोग ऐसे जा सकते हो तो जाएंगे. हम लोग का टारगेट क्या है? डिनोमिनेटर से ये एज को किसी तरह कैंसिल करना है. बाकी कोई भी हम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है. अगर यहाँ पर किसी तरह डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो गया तो दैट मींस यहाँ पर देखो बहुत कुछ ही यहाँ पर सोल्यूशन हो गया और इतना यहाँ पर चिंता जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में लिमिट h टेंड्स टू 0, x square 1 minus x minus h whole square minus x minus h whole square 1 minus x square whole by h into root. This part will be the same, root 1 minus x minus h whole square फिर plus x minus h root over 1 minus x square. So limit h tends to 0. अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, देखो तो x स्क्वायर 1 के साथ करेंगे तो x स्क्वायर इसके साथ करेंगे तो क्या पर होगा, क्या ये है कि नहीं. फिर ये वाला इसके साथ करेंगे माइनस ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर, ये इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस x माइनस h होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर होल बाई h, देन रूट x1 माइनस x माइनस h होल स्क्वायर x minus h root over 1 minus x square. ठीक है. Now you can do the cancellation in the numerator part as well. If any terms will be cancelled, then you have to cancel that term. That you can see these two terms will be cancelled out. Okay. So यहाँ पर देखो ये दो टर्म, यहाँ पर ये दो टर्म बाकी रहता है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस एच होल स्क्वायर है कि नहीं. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर, और नीचे जो है एज इट इज सेम रखो. मैंने बोला था नीचे टच भी नहीं करना है कुछ. एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं. तो बस अब हम लोग यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे. तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एच स्क्वायर, नीचे जो है h आएगा और इधर x रूट 1 माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं. सो दैट मींस दिस कैंसिल. ठीक है. अब बाकी जो है वो लिख दो. लिमिट h टेंड्स टू 0. क्या क्या टर्म है? 2xh h स्क्वायर, h कॉमन आ सकता है ना, क्या रहेगा
ट्वाइस एक्स माइनस बाई एच, और ये रूट ओवर का टर्म जो है उसको एज इट इज सेम रखना है, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर एच एच कैंसिल हो गया है, हम लोग का जो टारगेट था वो टारगेट जो है फुलफिल हो गया है यहाँ पर, ठीक है, हो गया। सो अब जो है अगर नीचे वाला जो एज जो है वो अगर कैंसिल हो गया है, अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट एज का वैल्यू 0 पुट कर देना है पूरा एक्सप्रेशन में। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एज इक्वल्स टू 0, ट्वाइस एक्स बाई एज के जगह 0 पुट कर देंगे, ये एज के जगह 0, ये एज के जगह 0, दैट मीन्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो ऐसा रहता है कि नहीं, और यहाँ पर ट्वाइस एक्स बाई 2 इंटू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, एक्स एक्स भी कैंसिल, दैट मीन्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ddx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया आंसर। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन करके आंसर आया, बट इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग जो है आज इस टाइप के कैलकुलेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके ना, अब कोई बोले कि डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का सॉरी कॉस इनवर्स एक्स, डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये निकालो। फाइंड डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका आंसर क्या होगा निकालो यूजिंग सेम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। अच्छा यहाँ पर बोलो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, ये दोनों किस टाइप का फंक्शन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कि नहीं? सो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा है। यहाँ पर साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। टू रिमेम्बर दिस थिंग है। देखो यहाँ पर एक चीज जो है हम लोग यहाँ पर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू तुम्हें निकालना है। डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू तुम्हें आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तुम दो प्रोसेस से ये कर सकते हो। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हो। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो ये लिख लो है। जैसे सपोज कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला। क्लास 11th में मिला तुम लोग को। लेट कॉस ए इक्वल्स टू एक्स, कॉस बी इक्वल्स टू वाई, कॉस ए इक्वल्स टू एक्स, कॉस बी इक्वल्स टू वाई ले सकते हैं। अब जो है यहाँ पर साइन ए क्या आएगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है साइन बी क्या आएगा? सेम रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, उस पर बिठा दो है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर ए मतलब क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स है कि नहीं। और बी क्या होगा? कॉस इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई। इधर जो है सब वैल्यू बिठा दो, तो कॉस ए कॉस बी, दैट मींस कॉस ए हम लोगों ने क्या लिया था? एक्स, कॉस बी मतलब वाई, दैट इज एक्स वाई, प्लस साइन ए साइन बी, दैट मींस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर है कि नहीं है? तो अल्टीमेटली देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू, ये कॉस जो है साइड चेंज जो क्या कर उधर जाएगा
कॉस इनवर्स क्या आएगा, एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स अल्टीमेट जो है फॉर्मूला क्या बना, ये बना कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज करके भी तुम लोग कर सकते हो। और दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है, वो शॉर्टकट प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब दोनों का एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है नहीं। तो अगर ये नॉर्मल फंक्शन साइन और कोसाइन फंक्शन अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो तो साइन इनवर्स और कोसाइन इनवर्स फंक्शन भी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, है कि नहीं। सोचो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या किसको बोल रहे हो, साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन फंक्शन और कोस फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है। तो एज इट इज सेम यहाँ पर जो है हम लोगों का साइन इनवर्स और कोसाइन इनवर्स फंक्शन भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं ये थोड़ा देखो। ये हो गया। अगेन ये तीसरा प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये लिख लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 है कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 एज इट इज। ये भी ये लिख सकते हम लोग, है कि नहीं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टी है कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 एज इट इज सेम। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 सेम। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे तब ये जो है हम लोग ब्रीफली करेंगे। बट यहाँ पर ये रख दो कि साइन इनवर्स और कोसाइन इनवर्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, इसलिए दोनों का इनवर्स का अगर प्लस करेंगे तो आंसर जो है पाई बाई 2 आएगा। दैट मीन्स 90 डिग्री आएगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो हियर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है। तो उसको देखो तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते क्या, ये फॉर्मूला यूज करके। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब जो है लेफ्ट हैंड ये सॉरी ये निकालो तो। सो डी डी एक्स ऑफ cos inverse x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h। so that means limit h tends to 0 f of x plus h मतलब क्या होगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। देखो यहाँ पर f x क्या है, ये है, तो साइन x है तो x प्लस h क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस h है कि नहीं। अगेन माइनस एफ एक्स, देयर इज माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स होल बाई एच। पाई बाई 2 कैंसिल है कि नहीं। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या रह गया वो थोड़ा देखो। सो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, माइनस भी एक है, माइनस साइन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस होल बाय एच, ये टर्म है। माइनस को हम लोग अगर कॉमन ले ले, ये माइनस को कॉमन लेकर अगर बाहर निकाल दे, ऐसे देखो तो लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस को कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई एच, ऐसा आएगा कि नहीं। अब ये देखो तो साइन इनवर्स एक्स का जो हम लोगों ने डी डी एक्स निकाला था उससे सेम है कि नहीं, उससे कैलकुलेशन जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हम लोगों ने अभी भी निकाला है, ये जो पार्ट है क्या है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सामने सिर्फ एक माइनस साइन रहेगा। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होगा माइनस ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ओके, अब है हम लोग ये थोड़ा अभी ये चेक कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 ये कैसे आ गया, ठीक है। तो यहां पर एक लिखो, नोट देके लिखो, नोट
हम लोग प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पर प्रूफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये कैसे आ गया है कि नहीं? वी नो दैट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं, है कि नहीं? लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, ठीक है? साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स हम लोगों ने एज्यूम किया है, ये याद रखना थोड़ा। इक्वेशन नंबर 1 देख रखो, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। उसको देखो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। बात तो एक ही है ना, एक ही तो बात है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, या फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, बात तो एक ही है। अब ये पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये कॉस को अगर मैं साइड चेंज करके उधर लेके जाऊं, कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा में हम लोगों ने क्या लिया था, ये देखो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स एज्यूम किया था, है कि नहीं? तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो एक साथ ले लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। हो गया कि नहीं? देखो प्रूफ, ठीक है, हो गया। तो हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों ने यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज किया था, ठीक है? कॉस इनवर्स एक्स के जगह में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ओके। नाउ अब देखो यहां पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस यहां पर कवर करेंगे। लिखो, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, check the differentiability, check the differentiability of fx equals to 3x minus 2, 0 less than x less equals to 1, फिर 2x square minus x 1 less than x less equals to 2, फिर 5x minus 4 x ग्रेटर देन 2, ठीक है? तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। आप लोगों को अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 1 में भी चेक करना है, x इक्वल्स टू 2 में भी चेक करना है। तो जस्ट लाइक योर कंटिन्यूटी चैप्टर, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर गोइंग टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी, व्हाटएवर इट इज, two conditions should be there. If you are checking the continuity at x equals to 1, then two cases should be there. One case is for less than 1, one case is for greater than 1. Remember this thing, LHL, RHL. Here the same thing will be differentiability. If you are checking the differentiability at x equals to 1, that means two cases should be there, less than 1, greater than 1, ठीक है? 2 में चेक कर रहे हो, less than 2, greater than 2, ये केसेस तुम्हें देखना पड़ेगा। अब फंक्शन जो दिया गया है वहां पर देखो तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, लेस देन 2 ग्रेटर देन 2, ये सब केसेस जो है वो है कि नहीं? ये देखो लेस देन 1 केस है, ग्रेटर देन 1 केस भी है, लेस देन 2 भी केस है, ग्रेटर देन 2 भी केस है। दैट मींस यहाँ पर हम लोग जो है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। दैट मींस इस ऑन दिस पॉइंट्स whether this given function will be differentiable or not, just we are going to check this thing. For this checking we have to find the LHD and RHD for the particular point as well. At x equals to 1, x equals to 1 में हम लोग चेक कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ये LHD निकाल रहे हैं, ठीक है? तो LHD मतलब f of 1 minus f of 1 minus h by h, that means limit h tends to 0। अब बोलो 1 से LHD at x equals to 1 में चेक कर रहे हो ना, LHD चेक करो, लेफ्ट हैंड चेक करो। लेफ्ट हैंड मतलब क्या, 1 से छोटा या 1 से बड़ा? लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, ये बात, ये वर्ड यूज हो गया, दैट मीन्स छोटा, छोटा याद रखना। दैट मीन्स 1 से छोटा जाना है, तो 1 से छोटा जाना है कौन सा फंक्शन? 1 से छोटा जाना है कौन सा फंक्शन? 3x minus 2।
तो दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन कौन सा चूज करना है, 3x माइनस 2। ओके, तो f ऑफ 1 जो हम लोग लिख रहे हैं f ऑफ 1, तो उसमें fx तो ये है 3x माइनस 2, f ऑफ 1 क्या होगा, x के जगह तुम्हें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, x के जगह 1 पुट करना है। देखिए यहाँ पर f ऑफ 1 है, fx अगर यहाँ पर 3x माइनस 2 होता है तो f ऑफ 1 क्या होगा, 3 इंटू 1 माइनस 2, नॉर्मल थिंग। फिर f ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, 3 इंटू x के जगह 1 माइनस एच माइनस 2, नॉर्मल थिंग। यहां पर भी सेम, माइनस f ऑफ 1 माइनस एच, दैट मीन्स 3 इंटू 1 माइनस एच माइनस 2 होल बाई h। सो दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस ये माइनस 3 माइनस 3h माइनस 2 होल बाई h, एग्री। सो दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 प्लस 3h बाई h, 1 1 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आई थिंक h भी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स ये ऐसा रहेगा ना लाइन, देखो तो ये ऐसा रहेगा 3h बाई 3h बाई सॉरी h कैंसिल, आंसर इज 3। दैट मीन्स LHD का आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब जाओ RHD, किस पॉइंट में, x इक्वल्स टू 1 पॉइंट में, तो x इक्वल्स टू 1 पॉइंट में RHD चेक कर रहे हो, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर जा रहे हो, तो 1 से ग्रेटर मतलब 1 प्लस h केस, है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फॉर्मूला यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर RHD लिखो, RHD ये होगा 1 प्लस h और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ग्रेटर वाला सामने रखना है, 1 प्लस h तो 1 से बड़ा होता है ना, ग्रेटर होता है, इसलिए 1 प्लस h सामने आएगा। फिर यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर देखो RHD मतलब 1 से ग्रेटर केस कौन सा फंक्शन चूज करना है, ये देखो 1 से ग्रेटर ये फंक्शन है ना, ये केस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, जस्ट x के जगह तुम्हें 1 प्लस h सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h। f ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू 1 स्क्वायर, देखो x के जगह 1 माइनस 1, बस यही वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, ये है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या है, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 होल बाई h, तो यहाँ पर है। तो अब आओ 2 इंटू 1 प्लस h, दैट इज 1 प्लस ट्वाइस h प्लस h स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला, माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 माइनस h, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो है 2 माइनस 1 1 आ रहा है आंसर, बाई h, है कि नहीं, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करो, तो ये ब्रैकेट जो है हटाओ, 2 को मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर ब्रैकेट हटा दो, है एक ही तो बात है ना, ठीक है। अब आओ लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 4h, 2 प्लस 4h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 माइनस h माइनस 1 होल बाई h। देखो यहाँ पर प्लस 2 या माइनस 1 कैंसिल, और यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4h माइनस h दैट इज 3h प्लस ट्वाइस h स्क्वायर बाई h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर एक h जो है वो कॉमन आता है, देखो ट्वाइस h बाई h कैंसिल, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, अब h का वैल्यू 0 हम लोग पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा, दैट इज 3 इज द आंसर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 1, जस्ट राइट द स्टेटमेंट। सो fx इज डिफरेंशिएबल, ऐसे लिख लो, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 में डिफरेंशिएबल है, ये हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया है, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 2 में अगर मैं यहाँ पर चेक करूं x इक्वल्स टू
2 में x इक्वल्स टू 2, तो 2 केस होना पड़ेगा, लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पर देखो लेस देन 2 भी है, ग्रेटर देन 2 भी है, तो यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस h बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2, फंक्शन कौन सा चूज करना है, ये वाला, दैट मीन्स देखो यहाँ पर x के जगह क्या पुट करना है 2, ध्यान से करो, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस h, दैट इज 2 इंटू 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस h होल बाई h। अब है कैलकुलेशन करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 टू 8 माइनस 2 माइनस ये 2, 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, और इधर माइनस 2 प्लस h बाई h एक है कि नहीं, कैलकुलेशन करना है अभी, और तो कुछ नहीं है। तो यहां पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर ये 6 आ रहा है, 8 माइनस 2 6, इधर माइनस ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लो, यहाँ पर 8 माइनस 8h प्लस ट्वाइस h स्क्वायर माइनस 2 प्लस h होल बाई h इज देयर, हो गया। अब जो है ब्रैकेट जो है सब हटा दो, माइनस को मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8h माइनस ट्वाइस h स्क्वायर प्लस 2 माइनस h बाई, यहाँ पर देखो 6 प्लस 2 8 माइनस 8 कैंसिल, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 8h माइनस h दैट इज 7h माइनस ट्वाइस h स्क्वायर बाई h, और h अगर मैं हम लोग यहाँ पर कॉमन ले, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अगर कॉमन ले 7 माइनस ट्वाइस h by h cancel, answer is 7 here, just you can see if you put the limit h equals to 0 here, this expression will be 0, the answer will be 7. If you don't have the denominator part in the limit expression, then you can use the limit as well in that expression with the immediate effect. Okay, so here left hand derivative का आंसर जो है वो क्या आया है, 7 आया है। अब राइट हैंड जब करेंगे, राइट हैंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं, तो फंक्शन भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 से ग्रेटर वाला केस, तो ये है ना 5x माइनस 4, है कि नहीं, देखो 2 से ग्रेटर वाला केस, तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो 5x, x के जगह 2 प्लस h माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2 5x, तो x के जगह 2 पुट करना है, 5 इंटू 2 माइनस 4 होल बाई h, तो यहाँ पर देखो 10 प्लस 5h माइनस 4 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस h बाई h, यहाँ पर ये 10 कैंसिल, है कि नहीं, तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5x माइनस 4 है ना, तो दैट मीन्स 10 प्लस 5h माइनस 4, यहाँ पर 5 इंटू 2 माइनस 4, तो दैट इज यहाँ पर, ठीक है ना सब कुछ, यहाँ पर 5 इंटू 2 माइनस 4, इट इज 4 एक्चुअली, नॉट h 4, तो ये 4 भी देखो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 5h बाई h कैंसिल, दैट इज आंसर इज व्हाट 5। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है व्हाट 7, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है व्हाट 5, दैट मीन्स यहाँ पर तो इक्वल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 में ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जस्ट राइट द स्टेटमेंट, सो एट x इक्वल्स टू 2 दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो एट x इक्वल्स टू 2 fx is not differentiable, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, क्या करना है अभी, कुछ नहीं कर सकते, नॉट डिफरेंट, क्योंकि दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स आर नॉट सेम, 7 एंड 5 आंसर इज नॉट सेम, सो व्हाट टू डू, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, बट x इक्वल्स टू 1 में है, हम लोगों ने चेक किया है, x इक्वल्स टू 1 में तो है कि नहीं। तो अच्छा, आप लोगों को अगर
if classes पसंद आ रहा है, lectures पसंद आ रहा है, please subscribe, share and like. Okay, please subscribe my channel. And 11th classes is also going on, and the 11th classes candidate. Actually, this admission process is not there because of this lockdown. I think if there was no lockdown, then I think you would have got the admission in the various colleges as well. But because of this lockdown, due to this unfortunate situation, the process is being delayed. Okay, so what to do? The studies should be going on. Okay, so the 11th candidate, those who are actually thus willing to take the admission in science, please join the classes as well, because the 11th class is also going on, but in very that means very slowly this classes is going on, very slowly, and 2 days or 1 day after this 1 day's gap will be there. The 11th classes videos will be uploaded. Okay, so that's why I'm not actually giving too much force on the 11th class students, because they are just they had completed their exams now, and just they are moving to the next phase of their life. That means moving to the important phase, and that's why just I have to make them confidence. I have to make them confident in this subject as well. And then after that, whenever they will get the confidence from my lecture and from my classes, then after that we will continue the classes and we will actually boost our speed as well. Okay, and now ये हम लोग का मेरा एक छोटा भाई है जो कि केमिस्ट्री क्लास कराता है. ठीक है, आप लोगों को अगर ये केमिस्ट्री क्लास करना है तो आप लोग जो है, मैं वीडियो में जो है ये डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूंगा उनका चैनल का, आप लोग जाके देख सकते हैं. ठीक है, देखने के बाद अगर पसंद आया तो आप लोग जो है यहाँ पर सब्सक्राइब और क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं. बहुत अच्छे टीचर हैं. ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं. जस्ट आप लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग मूव करेंगे यहाँ पर. Just write the question here. Just write the question. If fx equals to, just write the question here. If fx equals to, very important, 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चंस आता है बहुत. ठीक है, यहाँ पर fx equals to x square plus 7x plus 4. Then find f dash 2. f dash 2. ये f dash 2 का मतलब क्या है? ये f dash 2 इसका मतलब क्या है? जब x का वैल्यू 2 हो तब आपको f dash x का वैल्यू निकालना है. बस वही चीज है. दैट मींस f dash x का आंसर निकालोगे, निकाल के x का वैल्यू जो है वो 2 पुट कर दोगे. यही है, कुछ नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन थोड़ा देखो. वी नो दैट, ऐसे लिखो, वी नो दैट ddx of fx और f dash x, मैंने बोला था कि एकदम स्टार्टिंग में ये दोनों एक ही बात है. उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा देखो, f of x plus h minus f of x by h. So that means limit h tends to 0. यहाँ पर fx क्या गिवन है? ये गिवन है, ठीक है नहीं? तो f of x plus h क्या होगा? देखो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स क्या होगा? एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है? एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 7x. दैट मीन्स प्लस 7x मतलब एक्स प्लस एच माइनस प्लस 4. ठीक है, फिर माइनस 2, ये माइनस जो यहाँ पर आएगा. फिर fx तो नॉर्मल लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल डिवाइड बाई क्या है? एच. सो लिमिट एच टेंड्स टू 0. यहाँ पर ये जब फॉर्मूला सब तोड़ दो, यहाँ पर 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 7x प्लस 28 प्लस x प्लस एच है, ये सॉरी 7h होगा, ये h है, प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 होल डिवाइड बाई एच. यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है यहाँ पर. देखो 7x भी कैंसिल, तो बाकी क्या रहता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 7h होल बाई h. ऊपर देखो एक h हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, 2x प्लस h प्लस 7 बाई h कैंसिल.
अब डिनोमिनेटर में देखो कुछ टर्म नहीं है, तो हम लोग जो है एच का वैल्यू 0 अगर पुट कर दे डिनोमिनेटर में, तो 0 आने का यहाँ पर चांसेस ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। करने के बाद एच का वैल्यू 0 अगर यहाँ पर पुट कर देंगे, और तो एच का एक्सप्रेशन तो है नहीं, एक ही एक्सप्रेशन, एक लौता एक्सप्रेशन है यहाँ पर 2x प्लस 7। जस्ट यू कैन सी 2x प्लस 7 इज द आंसर। दैट मीन्स यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है वो क्या निकला है, एफ डैश एक्स का आंसर क्या है 2x प्लस 7। आप लोगों को निकालना है क्या है एफ डैश 2। दैट मीन्स एफ डैश एक्स के जगह क्या पुट करना है 2। दैट मीन्स 2 इंटू ई एक्स के जगह में भी 2 पुट करना है प्लस 7। दैट मीन्स 4 प्लस 7 दैट इज 11। ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर देखो हम लोगों ने आज जो है डिफरेंशियबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किया है। हाँ, और ये पूरा वीडियो जो है पूरा फुल आप लोगों को देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है, ये सब डिस्कशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। ठीक है, आप एक लाइन यहाँ पर एक वर्ड मिस कर देंगे, दैट मीन्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू। यू हैव टू कन्फ्रंट various problems regarding this differentiability and integration chapter also. Okay, if you don't have actually the basic concepts regarding the calculus part, then it is very hardly to move to the next part of this calculus, which is going to be very tough and conceptual also. Okay, these are all actually the foundation of the calculus part. Foundation. Okay, if your foundation is going to be strong, then the building can be constructed. It may be 7th floor, 8th floor, 70 floors also, no problem. But your foundation, your base foundation should be strong as so much as possible. Okay, so at first try to make the base, the foundation as strong as possible. Then after that you should move to the next part. You should move to the next phase. So here you can see after that relation function, just from the starting, just in the serial way, just you should join the classes. You should watch the videos very carefully, and after that you will see, you will realize that in mathematics it is very simple thing is going on, and we can achieve the 90 marks or 100 out of 100 marks in mathematics very easily. Okay, it is my guarantee that after joining my classes and after doing my classes, then you will be the most strong student in mathematics subject as well. Okay, amongst your friends. Okay, so मैंने जो बोला है तो केमिस्ट्री जो चैनल है उनका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप लोग देख सकते हैं। देखने के बाद अगर पसंद आया तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, है कि नहीं। बहुत अच्छा केमिस्ट्री का टीचर है, आप देख सकते हैं चैनल। ठीक है, और अभी जो है हम लोग ये यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, बट आप लोग को देखना है, पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में भी डिफरेंशियबिलिटी का डिफरेंट क्वेश्चंस जो है करेंगे। ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे आइसोलेटेड फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शंस, एंड गुड बाय, जय हिंद।